आपने किसी से बोलना है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, तो आप इसे 4 तरह से बोल सकते हैं। पहला, आई एम इन अ डायलेमा। दूसरा, आई एम बिविल्डर्ड। तीसरा, आई एम मिक्स्ड अप। और फोर्थ वन, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है, तो यू कैन से आई हैव नो क्लू। So which one are you going to use today? Do comment below. There, there, there. There. Both are there. What's the difference? This one is an adverb of place and this one is a possessive pronoun. इसका मतलब होता है कोई लोकेशन बताना, like he is sitting there. इसका मीनिंग होता है किसी एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की बिलोंगिंग बताना। तो याद कैसे करेंगे? पोजेसिव में एक आई है, वाले देयर में भी एक आई है। तो बस याद करना जो प्रोनाउन है वो है THEIR वाला देयर। फाउंड इट इंडिया इज माई कंट्री, डैश इज अ वास्ट कंट्री। सो विच प्रोनाउन विल यू फिल इन दिस डैश? He, she or it? And if I say the answer will be she, won't you be surprised? No, no need to get surprised. Actually, we call our India to be our motherland. And for motherland, we always use she or her. So your correct usage will be India is my country. She is a vast country. So next time, be careful. If you found it interesting, do like the video. Some people spell it as DEFENSE, while some people spell it as DEFENCE. So do you get confused? Which one is correct? Yes, actually both are correct. How? In American English, we use this S wala defense. And for British English, we use this C wala defense. Next time, don't get confused in the usage of this word. If you found the information interesting, do subscribe to the channel and give the video a thumbs up. तुम्हें अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए। So do you know how do we speak it in English? Means औकात में रहने को हम English में 4 तरह से बोल सकते हैं। First is keeping in mind. So how will you frame a sentence? Keeping in mind your status, you should do your work. Second is keeping in view. So keeping in view your status, you should do all your work. Third is in the light of. Means you should do all your work in the light of your status. Fourth is taking into account. You should do all the work taking your status into account. So next time you can use it very easy. ADVICE or ADVISE. This advice means salaha. It's a noun. और ये वाला ADVISE advice means किसी को सलाह देना, means it's a verb. याद कैसे रखेंगे? आप चेक करें कि आप ED किसके साथ लगा सकते हैं। आप ED S के बाद ही लगा सकते हैं, C के बाद नहीं लगा सकते। तो जिसमें S लगा है वो आपका वर्ब है, क्योंकि आप उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। So in this way you can remember it and you will never make a mistake. DESSERT or DESERT. Which one is correct? Both are correct. First one is called dessert. That means a sweet dish which we take after a meal. And the second one is desert. It is a hot and dry place. So how will you remember it? Very simple. बस याद रखना है कि स्वीट डिश वाले डिजर्ट में एक स्वीट का S एक्स्ट्रा है। So next time you will never forget it. ACCEPT or EXCEPT. This is accept. This is accept. Accept means to agree to someone. And accept means excluding something, means के अलावा. Like all gave me a gift except you. How to remember? Simple trick. X, जिसमें X लगा है, X means जो चीज जा चुकी है, तो X वाला होगा के अलावा। Always remember it. जिसमें X है वो के अलावा। And accept means accept कर लिया। So in this way you can remember it and next time you won't make a mistake. Do और does में क्या डिफरेंस होता है? He, she, it इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ does लगता है और बाकी सबके साथ do लगता है। He means
कोई भी बॉय का नेम, शी मीन्स किसी भी गर्ल का नेम, और इट मीन्स कोई भी एक चीज, कोई भी एनिमल और बर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई फर्स्ट पर्सन, आई डू माई वर्क, आई एम फर्स्ट पर्सन, आई डू माई वर्क. You second person, do your work. She third person does her work. तो इसी तरह दे भी एक थर्ड पर्सन है, तो उसमें क्या लगेगा, डू या डज. डू कॉमेंट ड्यूरिंग और व्हाइल, दोनों का ही मीनिंग होता है के दौरान. मीन्स ऐसे दो काम जो एक ही समय पर हो रहे होते हैं. बट डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमेशा एक नाउन आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही टुक हिज फूड ड्यूरिंग द क्लास. द क्लास एक नाउन है, बट while एक कंजंक्शन है और उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आता है जिसमें एक आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, he took his food while the class was going on. The class was going on is a complete sentence जिसमें going ing form यूज हुआ है. Found it interesting and useful? Then don't forget to like, share and subscribe. Under means नीचे, below means नीचे. तो अगर मैं ये स्केल ऐसे रख लेती हूं तो आप क्या कहेंगे, एम आई अंडर द स्केल और एम आई बिलो द स्केल. सो लेट अस सी. अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही है, मीन्स जिस तरह ये स्केल मेरे हेड को कवर कर रहा है, तो मैं बोलूँगी आई एम अंडर द स्केल. बट अगर ये स्केल इस तरह से है और मेरी हाइट इस स्केल से कम है, तो मैं बोलूँगी आई एम बिलो द स्केल. तो मीन्स अंडर का मीनिंग होता है नीचे और बिलो का मीनिंग होता है से नीचे. सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल. स्केल इज इन द वाटर और इनटू द वाटर. कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, लेट अस सी. अगर ये स्केल पानी के अंदर एक स्टेबल पोजीशन में है तो आप बोलेंगे द स्केल इज इन द वाटर. बट अगर ये मूवमेंट में आता है इस तरह तो आप बोलेंगे आई थ्रू द स्केल इनटू द वाटर. मीन्स अगर स्टेबल पोजीशन में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो इन, और अगर मूवमेंट में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाती है तो इनटू. रूफ, टेरेस या सीलिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी. ये जो आप देख रहे हैं जिस पर हम शैंडिलियर या फिर फैंस लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं सीलिंग, जो आपको अपने रूम के अंदर से दिखाई देती है. इस पर मैं अभी खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे प्लांट्स वगैरह सब रखे हुए हैं. जो हमारे रूम के बाहर की ऊपर की साइड से दिखती है उसे हम बोलते हैं रूफ. और ये पार्ट जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जो हमारी रूफ़ का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जो थोड़ा आगे की तरफ बड़ा होता है और जिस पे खड़े होकर हम नीचे झांकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेरेस. फोन मिलाओ, मेक द कॉल. फोन उठाओ, टेक द कॉल और पिक द फोन. मुझे जल्दी से फ़ोन करो. Call me fast or phone me fast. Which one is better? Actually, both are correct because phone is a device and call is a verb. But phone is also a verb. तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. But better होगा और जो mostly यूज़ होता है वो होता है call me fast. I am an English teacher or I am a teacher of English. Which one is correct? जब आप बोलते हैं I am an English teacher तो इसका मीनिंग आता है कि आप इंग्लैंड में रहने वाले एक टीचर हैं. बट अगर आप बोलते हैं I am a teacher of English तो इसका मीनिंग आता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर हैं. Actually both are correct. You can use any of them. But the second one is better. So it would be better to say I am a teacher of English. Are you a teacher of any subject? Please do tell in the comment box. धूप में खड़ी हूँ. I am standing in the sun. आज चिलचिलाती धूप है. Today the sun is scorching. कल बहुत हल्की धूप थी. Yesterday the sun was very light. But फिर भी मैं धूप सेक लेती हूँ. But still let me bask in the sun. कुछ लोग तो बीच पर जाकर धूप सेकते हैं. Some people go to the beach for sun bathing. तो चलो धूप के मजे लेते हैं. So let's soak in some sun. So did you? कार चलाने को ड्राइविंग कहते हैं, तो बाकी ट्रांसपोर्ट के मीन्स को चलाने को क्या कहते हैं? सो लेट्स सी. इसमें लास्ट वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो मैं कार चला रही हूँ. आई एम ड्राइविंग अ कार. वो बाइक चला रहा है. ही इज राइडिंग अ बाइक. वो साइकिल चला रहा है. ही इज साइकिलिंग अ बाइसिकल और ही इज साइकिलिंग. वो रिक्शा चला रहा है. ही इज
पुलिंग अ रिक्शा, वो प्लेन उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन। बट वो शिप चला रहा है को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, ही इज पायलटिंग अ शिप, और ही इज स्टीयरिंग अ शिप, और ही इज directing a ship. So found it interesting and useful? Then like, share and subscribe to show support. Utterly butterly delicious, या फिर Amul the taste of India. I hope you all are familiar with this. But क्या आपने कभी सोचा है ये जो अमूल डेली हमारे घर में आता है किसी ना किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसके फुल फॉर्म क्या है? यस, इसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल वर्ड जो है वो बना है अमूल्या से। अमूल्या का मीनिंग होता है प्राइसलेस या फिर बहुत वैल्यूएबल। अगर आपको किसी को बोलना है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश और ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश। सो करेक्ट आंसर विल बी ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, बिकॉज हम गुड, बैड, वर्स्ट इन सबके साथ इन नहीं एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यूज इट करेक्ट। हम डेली हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, बट आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, जो चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं और पैंडमिक के बाद तो वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है, वो है कंप्यूटर। बट क्या आपको पता है कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को इंग्लिश में बोलते हैं संगणक। सो we are proud Indians, so we should know the Hindi of each and every word. So कंप्यूटर को हम हिंदी में बोलते हैं संगणक। आज है संडे और मैं ये गोभी का पराठा चाय के साथ खा रही हूँ कुछ 12:10 पर। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या फिर मैं लंच कर रही हूँ? तो एक्चुअली जब आपका ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है और वो लंच के टाइम के आसपास पहुँच जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रंच। और इसी तरह अगर आपका डिनर अर्ली हो जाता है, मीन्स अगर आपने 6-7 बजे ही डिनर कर लिया, तो आप उसे इंग्लिश में डिनर नहीं सपर बोलेंगे। तो समोसा, कचौरी, आलू पराठा बनाने के लिए जो हम पीठी बनाते हैं आलू की, उसे हम इंग्लिश में 3 तरह से बोल सकते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग अ फिलिंग ऑफ पटाटो, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई एम प्रिपेयरिंग अ स्टफिंग ऑफ पटाटो, या फिर उससे भी सिंपल मैं बोल सकती हूँ आई एम प्रिपेयरिंग मैश्ड पटाटो टू मेक अ पराठा टुडे। सो ये आंख है, इसे आई बोलते हैं, सबको पता है। बट आंख बंद करने को क्लोज द आई बोलते हैं, आंख झपकाने को ब्लिंक द आई बोलते हैं, आंख फड़कने को ट्विच द आई बोलते हैं, आंख मारने को, मुझे नहीं आती आंख मारनी, बट उसे विंक द आई बोलते हैं, और इसी तरह किसी की आंख का तारा होने को एप्पल ऑफ समवंस आई बोलते हैं। मीन्स माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आईज। सो सिर धोने को, बालों को सुखाने को, और सुखाने के लिए बाल झटकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखते हैं आज। तो सिर धोने को एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं हेड बाथ। आई हैव जस्ट टेकन अ हेड बाथ। तो अब मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ। नाउ आई एम मेकिंग माई हेयर ड्राई, और मैं सुखाने के लिए उन्हें टॉवेल से झटक रही। आई एम फ्लिपिंग माई हेयर टू मेक देम ड्राई। सो ये हाथ होता है, इसे इंग्लिश में हैंड बोलते हैं, सबको पता है। बट ये होता है थंब, ये होती है इंडेक्स फिंगर, ये होती है हमारी मिडल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, और ये होती है लिटिल फिंगर। इसी तरह ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम रिस्ट बोलते हैं, और ये हमारे जो होते हैं ये फिंगर नेल्स होते हैं, और इनके साथ ये जो बारीक सी एक लाइन सी होती है इसे हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसे हम पाम बोलते हैं। सो फाउंड इट। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और इसे किस तरह से यूज़ करते हैं वो समझते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कि ये 2 कप्स के बीच में अगर एक ग्लास पड़ा है तो वी विल से दिस ग्लास इज लाइंग बिटवीन द कप्स। बट इसी तरह से अगर आपको अमंग को समझना है तो अमंग का मीनिंग होता है बहुत सारी चीज़ों के बीच में, मीन्स 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच। ग्लासेस अमंग द कप्स, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बोलना है द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन both the boys, या फिर the sweets were distributed among all the boys. This is the difference between and
ये पैर है, इसे इंग्लिश में फुट बोलते हैं, सबको पता है। बट जब ये 2 हो जाते हैं तो इसे फीट बोलते हैं। हमारे पैर के फिंगर्स नहीं, इन्हें हम टोज बोलते हैं। ये हमारा बिग टो होता है, ये हमारा लिटिल टो होता है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग नेम होता है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। और जो ये ऊपर का पार्ट होता है पैर का, इसे ब्रिज बोलते हैं। इसी तरह जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम सोल बोलते हैं। और इस तरह आप देखेंगे ये एक आर्च बना रहा है तो इसे हम आर्च बोलते हैं। इसे हम हील बोलते हैं। ये वाला जो होता है ये हमारा एंकल होता है और इसके अंदर जो ये पहनते हैं इसे एंकलेट बोलते हैं। और अब ये जो लिटिल फिंगर होती है इसका जो इंटरेस्टिंग नाम होता है वो होता है पिंकी फिंगर। अभी फ़ोन रखो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको किसी से बोलना है कि बहुत बोल लिया, अभी फ़ोन रखो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैंग अप नाउ। यस, अभी फ़ोन रखो को इंग्लिश में बोलते हैं हैंग अप नाउ। सो इफ़ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे चक्कर आ रहा है, अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप इसे 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डिज़ी, और दूसरा आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग गिडी। दोनों ही करेक्ट हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ टॉकिंग टू मी और ही इज़ टॉकिंग विद मी, विच वन इज़ करेक्ट? लेट्स सी। अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ टॉकिंग टू मी का मतलब होता है कि वो बात कर रहा है और मैं सुन रही हूँ। बट अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ टॉकिंग विद मी, तो इसका मीनिंग होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।